केवलम् भावानं केवलम् भावानं केवलम् भावानं केवलम् भावानं केवलम् भावानं केवलम् भावानं केवलम्। परम पिता बाबा की जय। सभी को नमस्कार। 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 तो आज हम लोग प्रभात संगीत नंबर 212 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। एक बार प्रभात संगीत को मैं प्राउंड से एक बार कर देता हूँ, प्राउंड करता हूँ, इसके बाद फिर आप लोग आइएगा, हैंडज कर दीजिएगा। नीरब राते তোমারি সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। কেন গো গুলবাগে, কেন গো গুলবাগে হাজারো কাঁটা থাকে, কেন গো নির্ঝর রুক্ষ পথ বাঁচে, কমল গন্ধে ভরা মলিন জলে ফোটে, হাসিতে ভরা ধরা আধার পথে ছোটে। স্নেহ মমতা ভরা, স্নেহ মমতা ভরা রঙিন খয়াবে ঘেরা, কেন গো সৃষ্টি दादा হ্যাঁ दादा স্নেহ नेहो স্নেহ স্নেহ স স स्नेह। जी दादा जी। স্নেহ মমতা ভরা রঙিন খয়াবে ঘেরা, কেন গো সৃষ্টিতে কালের ছায়া নাচে, কেন গো অহমিকা, কেন গো অস্মিতা, কেন গো অহমিকা, কেন गो अस्मिता लुटाए पड़े तब चरण धूलि नीचे। मीनिंग है, मेरे निशब्द रात्रि में तेरे संग कितने अनकहे शब्द यूं ही अधर में लटके रह गए। गुलाबों के उपवन में क्यों गुलाबों के उपवन में हजारों कांटे बसते हैं, क्यों क्यों प्रचंड धाराएं उबड़ खाबड़ मार्ग ही चुनती हैं, सुगंधित कुमुदनी गंदे जल में खिलती हैं, सूर्यमयी पृथ्वी घोर अंधकार में कक्षा में दौड़ती है, प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण, प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण रंग बिरंगे सपनों से आबद्ध क्यों सृष्टि पृथ्वी की छाया के साथ नृत्य करती हैं, क्यों अभिमान, क्यों अहंकार, क्यों दर्प तेरे चरणों के धूल तले टूटकर बिखर जाता है। नीरब राते তোমারি সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে, নীরব রাতে কেন গো গুলবাগে, কেন গো গুলবাগে হাজারো কাঁটা থাকে, কেন গো নির্ঝর রুক্ষ পথ বাঁচে, নীরব রাতে তোমারি সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে, কমল গন্ধে ভরা, কমল গন্ধে ভরা মলিন জলে ফোটে, হাসিতে ভরা ধরা আন্ধার পথে ছোটে, স্নেহ মমতা ভরা, স্নেহ মমতা ভরা রঙিন খয়াবে ঘেরা, কেন গো সৃষ্টিতে কালের ছায়া নাচে, না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে,
নীরব রাতে, নীরব রাতে তোমারি সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। কেন গো অহমিকা, কেন গো আহামিকা, কেন গো স্মিতা লুটায় পড়ে তব চরণ ধুলি নিচে। না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। নীরব রাতে তোমারি সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। चलिए कौन गाएंगे? गाइए मधु दीदी। जी दादा ज्योत्सना ले जाओ इसको। गाने तो जरा না ভোলা কথা অনেক রয়ে গেছে। নীরব রাতে তোমারি সাথে না ভোলা কথা অনেক রয়ে গেছে। কেন গগল বাগে, কেন গগল বাগে হাজারো কাটা থাকে। কেন নির্ঝর রক্ষ পথ বাছে। না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। নীরব রাতে তোমারি সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। কমল গন্ধে ভরা, কমল গন্ধে ভরা মলিন জলে ফোটে হাসিতে ভরা ধরা আন্ধার পথে ছোটে স্নেহ মমতা ভরা। স্নেহ মমতা ভরা রঙিন ফুলে ঘেরা। কেন গো সৃষ্টিতে আলের ছায়া নাচে। না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। নীরব রাতে তোমারি সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। কেন গো অমিকা, কেন গো অমিকা, কেন গো স্মিতা লুটাই পড়ে তব চরণ ধুলি নিচে। না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। নীরব রাতে তোমারি সাথে
न बोला কথা অনেক রয়ে গেছে না ভোলা কথা অনেক রয়ে গেছে না ভোলা কথা অনেক রয়ে গেছে हो गया विभा दीदी विभूति गई नमस्कार। नमस्कार पिता बाबा की जय। मीरा बोराती तुम्हारी साथी न बोला কথানে রয়ে গেছে मीरा बोराती तुम्हारी साथी न बोला কথা অনেক রয়ে গেছে কেন গগন কেন গগন ভাগে হাজারো কাটা থাকে কেন গগন ভাগে হাজারো কাটা থাকে কেন গগনের ঝড় রূপ পথে বাছে কেন গগনের ঝড় রূপ পথ বাছে না কথা অনেক রয়ে গেছে নীরব রাতে তোমারি সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে কমল গন্ধে ভরা মালিনী জলে ফোটে কমল গন্ধে ভরা মালিনী জলে ফোটে হাসিতে ভরা ধরা অন্ধকার পথে ছোটে হাসিতে ভরা ধরা অন্ধকার পথে ছোটে স্নেহে মমতা ভরা স্নেহে মমতা ভরা রঙিন কুয়ারে ঘেরা স্নেহে মমতা ভরা রঙিন কুয়ারে ঘেরা কেন গো সৃষ্টিতে কালের ছায়া নাচে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে নীরব রাতে তোমারি সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে কেন গো অনামিকা কেন গো অনামিকা কেন গো অনামিকা কেন গো অস্মিতা কেন গো অনামিকা কেন গো অস্মিতা লুটায় করে তব চরণ ধুলি নিচে লুটায় করে তব চরণ ধুলি নিচে না বলা কথা
বলা কথা অনেক রয়ে গেছে, না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। परम पिता बाबा की जय। हो गया। बहुत बढ़िया। सपना दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर गाया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सपना संगीता दी दीदी। नमस्कार, गाइए। संगीता दीदी है। गाइए संगीता दीदी। जी जी सर, एक मिनट नमस्कार। बता रहे हैं। परम पिता बाबा की जय। नीरव राते तुम्हारे साथे, नीरव राते तुम्हारे साथे, না ভোলা কথা অনেক রয়ে গেছে, না ভোলা কথা অনেক রয়ে গেছে। কেন গুগল বাগে, কেন গুগল বাগে হাজারো কাটা থাকে, কেন গো নির্ঝর রুক্ষ পথ বাছে, না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। নীরব রাতে তোমারে সাথে, নীরব রাতে তোমারে সাথে, না ভোলা কথা অনেক রয়ে গেছে। কমল গন্ধে ভরা मलिन जाला फूटे। दादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं हम अच्छा से, सही हो रहा है, मोलिन जोले आज फूटे। समय ही नहीं मिला। कोमल मोलिन जोले गंधे, फूटे, जोले जोले फूटे। জি, কমল গন্ধে ভরা মলিন জলে ফোটে, হাসিতে ভরা তোরা পথে ছোটে, স্নেহ মমতা ভরা, স্নেহ মমতা ভরা রঙিন খোয়াবে ঘেরা, কেন গো সৃষ্টিতে কালেরও ছায়া নাচে, না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। নীরব রাতে তোমারি সাথে, নীরব রাতে তোমারি সাথে, না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। কেন গো অহমিকা, কেন গো অহমিকা, কেন গো স্মিতা, কেন গো অহমিকা, কেন গো স্মিতা, লুটায়ে পড়ে তব চরণ ধুলি না নিচে, লুটায়ে পড়ে তব চরণ ধুলি নিচে, না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে। নীরব রাতে তোমারি সাথে, নীরব রাতে তোমারি সাথে, না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে, না বলা
कोथा अनेक रोए गेचे। नमस्कार दादा, उतना अच्छा से नहीं हो पाया। नहीं, बढ़िया, प्रयास अच्छा था। चलिए, सपना दे दी। प्रयास अच्छा था और बहुत मीठा आवाज़ में गाई दीदी, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। नमस्कार दादा जी। नमस्कार। परम पिता बाबा की जय। नीरवराती तुम्हारे साथे नावला कथा অনেক রয়ে গেছি নীরবরাতি তোমারই সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছি কেন গো গর্ভগে কেন গো গর্ভগে হাজারো কাটা থাকে কেন গো নির্ঝরা দুঃখ কথা বাছে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে নীরবরাতি তোমারই সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে কমল গন্ধে ভরা মলিনা জলে ফোটে কমল গন্ধে ভরা মলিনা জলে ফোটে হাসিতে ভরা ধরা আন্ধার পথে ছোটে স্নেহ মমতা ভরা স্নেহ মমতা ভরা রঙিন কবে ঘেরা কেন গো সৃষ্টিতে কালের ছায়া নাচে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে নীরবরাতে তোমারই সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে কেন গো অনামিকা কেন গো অনামিকা কেন গো পিতা লুটাই পড়ে তব চরণ না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে নীরবরাতে তোমারই সাথে না বলা কথা অনেক রয়ে গেছে না বলা কথা অনেক রয়ে गए हो गया दादा बहुत अच्छा। आपका पैर जो मोच आया था वो ठीक हुआ दीदी? हाँ ठीक है अच्छा, चलिए। तो आज जनसंख्या ज़्यादा थी लोगों की, इसलिए क्लास को थोड़ा पहले समाप्त करना पड़ेगा। तो कल हम लोग फिर नए प्रभात संगीत सीखने जा रहे हैं 213। नोट कर लीजिएगा, प्रभात संगीत नंबर 213। जमालपुर आ रहे हो दादा? आएंगे आएंगे। कब कब निकलिएगा? थोड़ा लेट से निकलेंगे इस बार, तब पता नहीं, 10 तारीख को निकलेंगे, 10-11 को। ठीक है।
213 এসো এসো বন্ধু এসো জীবনেরও প্রতি নিঃশ্বাসে বসো বসো কাছে বসো মনকে ভরে সুবাসে তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার মনেরও কথা শোনাতে আর কেহ নাই যাহাকে শোনাই গোপন কথা নিভৃতে গাও গাও বন্ধু গাও আশায় ভরিতে বাতাসে নাও নাও খুশি মনে নাও सब किछु मोर हेसे हेसे। तो प्रभात संगीत नंबर 213। दादा आसाते है कि आशाए है? हाँ आसाते है कि आशाए है? आशाए है कि आसाते है? कितना स्टांजा कितना है? तो एक तो आशाए आशाए गाँव गाँव आशाए हाँ भोरीते दूसरा बतासे। हाँ दूसरा वाला गाँव 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 बंधु गाँव बंधु गाँव आशाए आशाए भोरीते आशाए बतासे। हाँ आप लोग बोले गए थे प्रभाषण करवा दूं? हाँ करवा दीजिए। क्या और दीदी सबसे आधा घंटा टाइम और नहीं है? दीदी हो जाएगा मधु दीदी और लोगों से। जी दादा संगीता दीदी सुने नहीं है लेकिन नहीं इसको प्ले करवा देते हैं। संगीता दीदी चले ठीक है। दादा दलीसी दिवस है उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना। अच्छा दधीची दिवस आपके पास बहुत सारा खजाना है बताइए। एक्चुअली देखिए दधीची जो शब्द है ये कहाँ से आया है? ये दधीची शब्द पुराणों में बहुत जगह पर दधीची का वर्णन किया गया है। ऋषि दधीची दधीची नाम के बहुत बड़े ऋषि थे, तो उसको लेकर के एक पुराण में भी कहानी है। और ये जो दधीची दिवस मनाते हैं आनंद मार्ग में, उसमें बाबा बोलते हैं दधीची को लेकर के कि जब मेरे बच्चे भागवत धर्म के आदर्शों के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं तो मैं उन्हें दधीची कहता हूँ। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो भागवत धर्म है, जो हम लोग का सनातन धर्म है, उसके मान मर्यादा, उसके आदर्श, उसके भाव को अपने प्राण की आहुति दे करके उसकी रक्षा करना है। और जब आप उसकी रक्षा करते हुए अगर आप शहीद हो जाए तो उसी को बोलते हैं दधीची। तो कहते हैं कि ऐसे तो मृत्यु आना ही है, लेकिन मृत्यु भी आए तो परमात्मा के कार्य को करते हुए मृत्यु आए तो कितनी बड़ी बात है। तो जितने भी लोग हैं हमारे आनंद मार्ग में, जो भी सत्यनिष्ठ हैं, बाबा के प्रति समर्पित हैं, मन में किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं है, द्वेष नहीं है, अहंकार नहीं है, मतलब अष्टपाश खड रिपु से वंचित, इसको जानते तक नहीं हो। उनका केवल मात्र एक ही ध्येय है, एक ही मात्र लक्ष्य है, परम पुरुष को खुश रखना, और उसके लिए चाहे उनको जान की कुर्बानी ही क्यों न करना पड़े। तो परम पुरुष कब खुश रहेंगे? जब हम अपने भागवत धर्म के पताका को हमेशा
लोगों के बीच लहराते हैं तो उनके कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाएगी। परमारथ के कार्य हेतु बहुत सारे संकट भी आते हैं, बहुत सारा दिक्कत होगा, समस्या होगी, उससे घबराना नहीं है, उससे हमेशा डट के रहना है, मुकाबला करते रहना है। जो धर्म है वो है परमात्मा के द्वारा दी गई, जो भी इस चराचर जगत में निर्जीव से सजीव तक जो भी चीज़ें दिख रही हैं उन सभी का देखभाल करना। जो सजीव जगत में जो भी विद्यमान है, कीड़े मकोड़े से लेकर के मानव जगत तक, उन सभी का भोजन, जल की व्यवस्था करना। साथ ही साथ अगर इन सबों को रक्षा हेतु अगर आपको जान की कुर्बानी भी करनी पड़ जाए तो भी तत्पर रहना। तो मैं स्टार्टिंग में दधीची के बारे में बोला था। दधीची एक बहुत बड़े ऋषि थे। पहले के समय में ऋषि महर्षि लोग हुआ करते थे, कुटिया बना करके रहते थे और उसमें अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। तो ऋषि लोग आज के समय के जो वैज्ञानिक हैं, पहले के समय में उनको ऋषि बोला जाता था। परवर्ती काल में धीरे धीरे उनका नाम वैज्ञानिक बोलने लगे, साइंटिस्ट इंग्लिश में उसका नाम बोला जाता है। तो पहले के ऋषि महर्षि लोग जो थे वो जन कल्याण के लिए हमेशा सोचा करते थे, लोगों का भला कैसे हो रहते थे। लेकिन जो काल जो है रूपांतरण होता गया काल का, साथ ही साथ लोगों का जो मानसिकता है उसमें भी बदलाव आता गया। अंतोगत्वा परिणाम ये हुआ कि लोगों में वैमनस्यता, लोगों में द्वेष भाव, लोगों में क्लेश, अलग अलग तरह की बुरी नीतियाँ, अलग अलग तरह का हीन मान्यताएँ, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे कई सारे ऐसे निगेटिव थॉट उनके मन में आते गए, जिसके कारण उनका जो सोचने का जो दायरा था वो सीमित सा रह गया। जब तक मन का सोचने की दायरा बृहत न हो तब तक आप दूसरे को जन कल्याण है तो लोक कल्याण है तो कभी नहीं सोच पाएंगे। उसका परिणाम ये रहा कि जो पहले ऋषि मुनि थे वो बाद में वैज्ञानिक धीरे धीरे परवर्ती काल में बने, और वैज्ञानिक जो बने केवल उनका शिक्षा, केवल उनका लोगों तक मनोरंजन करने मात्र रह गया है। उसका जो परिणाम होता है वो परिणाम अच्छा से ज़्यादा बुरा परिणाम ज़्यादा होता है, यानी कि निगेटिव जो रिजल्ट है सबसे ज़्यादा होता है, जबकि पॉजिटिव रिजल्ट बहुत कम होता है। कहने का मतलब है कि आज का समाज आज जिस गर्त में जाता जा रहा है उस गर्त से निकलने के लिए कोई दधीची जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो पहले समय में ऐतिहासिक कुछ चीज़ें जो कि शास्त्र के माध्यम से हम लोग तक पहुंचाई जाती हैं, तो उसमें दधीची जो थे उनका जो योगदान था, हमेशा देवताओं का जो राजा है वो देवेंद्र माना जाता है, देवेंद्र को, यानी कि इंद्र को। देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। तो देवों के जो भगवान है, इंद्र मतलब राजा, देवों के जो राजा है वो है देवेंद्र। तो जो इंद्र थे कभी कभी क्या होता था कि उनके साथ में रहने वाले जो भी देवी देवता जो थे वो सब अपने मार्ग से भटक जाते थे, अपने भगवत धर्म से मुख मोड़ लेते थे, जिसके कारण उनका जो शक्ति था वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता था। अंतोगत्वा क्या होता कि राक्षस समाज जो था, यहाँ राक्षस का मतलब निगेटिव चीज़ के बारे में बोला गया है। राक्षस का मतलब एक पॉजिटिव भी होता है। राक्षस जो रक्ष मतलब रक्षा करना, तो जो समाज में अन्य लोगों का रक्षा करता है
और एक राक्षस जिसको निगेटिव वे में देखा जाता है, वो भक्षण करता है लोगों का, चाहे जो भी हो। हालांकि यहाँ पर एक वर्ड लिया जा रहा है इसका कि ये जो राक्षस जो समाज है, जो दूसरों को कष्ट देने की जो परंपरा जो बहुत पहले से चली आ रही है, उसको किसी न किसी माध्यम से हम लोग जानते भी आ रहे हैं, चाहे पुराण हो, चाहे वैदिक परंपरा हो, चाहे और भी अन्य भी तरीके से। तो उसमें और आज के समय में, उस काल में और आज के इस परवर्ती काल में काफ़ी आसमान जमीन का फर्क है। तो पहले के लोग जन कल्याण के लिए सोचा करते, उसी में से उस जन कल्याणार्थी जो हमारे ऋषि महर्षि बोले जाते थे उनको, महर्षि दधीचि जो रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जब देवता लोग त्राहिमाम करते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे और उनको सारा चीज़ बतलाए कि राक्षस लोगों ने हमारे स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया है, तो भगवान शिव बार बार उनको सजेस्ट करते थे, बार बार उनको मदद करते थे, उनको सहायता करते थे, क्योंकि ये सतो गुण से प्रभावित होते थे देवतागण। और राक्षस समाज जो था वो तमोगुण से प्रभावित था। तो तमोगुण का काम ही है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना, खून का रसपान करना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। तो जितने सारे निगेटिव चीज़ें हैं उन सभी को अपने अंदर में उतारना। उसके जस्ट विपरीत जो सतो गुण होते हैं वो इसके विरोधाभास करते हैं। सात्विक आहार को ही केवल लेके चलते हैं। सतो गुण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, यानी अच्छाइयों से परिपूर्ण, उन सभी चीज़ों को हमेशा लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो भगवान शिव जो है उन्होंने बताया कि महर्षि दधीचि जो पृथ्वी लोक पर रहते हैं, उनके जो कंकाल है, उसके अस्थि जो है वो पंजर, उससे अगर हथियार बनाया जाए, यानी कि शस्त्र का निर्माण किया जाए, तो उस राक्षस का वध किया जा सकता है, राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तदुपरांत देवतागण पहुँचे महर्षि दधीचि के पास और उनसे प्रार्थना किया कि आप अपना शरीर को त्यागिए और आपके जो हड्डी से जो बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, उस कार्य को करने हेतु हम लोगों को प्रेरणा दें और आशीर्वाद दें। अंतोगत्वा उस समय कामधेनु नाम का एक गाय थी, वो हर चीज़ के पूर्ति करना है तो उसका दायित्व होता था, वो कोई भी चीज़ हो वो पूर्ण करती थी। तो कामधेनु को देवताओं ने आग्रह किया कि वो ऋषि महर्षि के शरीर को चाट करके और उनके पंजर शरीर को बाहर निकालें, और ताकि उस जो शरीर का जो ढांचा है, यानी कि हड्डी का, उससे देव शिल्पी विश्वकर्मा को दिया जाए और उससे शस्त्र का निर्माण करे और उस शस्त्र से राक्षसों का वध हो सके। तो देव शिल्पी को को दिया गया और उन्होंने उस शस्त्र बना करके दिया, जिनका नाम था वज्र। कहीं कहीं सुने होंगे कि देवराज इंद्र के पास वज्र रहता। तो वज्र का जो है उन्होंने प्रयोग किया राक्षसों के विरोध, और उन्होंने पुनः स्वर्ग पर अपना राज्य को स्थापित किया। कहने का मतलब ये है कि हमारे मन के अंदर अष्टपाश, घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शीलमान, खड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी का हमारे मन के अंदर
सम्मिश्रण होता है, वास होता है। तो हमारा जो मानव मस्तिष्क है वो हमेशा निगेटिव थिंकिंग को ज़्यादा प्रश्रय देता है। कारण क्योंकि हमारा मन हमेशा निगेटिव को ही ज़्यादा प्रश्रय देता है, उसी को पाने हेतु ललायित होता है, क्योंकि उसी में उसको लगता है कि उसी में हमको सुखानुभूति का अनुभव हो रहा है। लेकिन वो भूल बैठता है कि जो चीज़ संघर्ष से मिल रहा होता है वो अगर वो बिना संघर्ष का मिल गया तो उसी समय उसको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे 5 दधीचि, पंच का मतलब होता है 5। जैसे संस्कृत में गिनती होता है 1 द्वि त्रि चतुर पंच, तो पंच मतलब 5। दधीचि का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब भागवत धर्म के आदर्शों के लिए अपने प्राण को त्याग देता है तो उसको क्या बोलते हैं, दधीचि बोलते हैं। तो जो व्यक्ति त्याग करता है उसको बोलते हैं दधीचि। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आनंद मार्ग के विरोध सीपीएम का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी बोलते थे। तो कम्युनिस्ट लोगों का एक ही मात्र लक्ष्य था कि आनंद मार्ग को समाप्त करना और हमारे जो मार्ग गुरुदेव बाबा हैं उनको प्रताड़ना देना। तो बाबा को बहुत सारा कष्ट सहना पड़ता था, उनको हमेशा कोई ना कोई देखा जाए तो निगेटिव शक्तियों से हमेशा जूझना पड़ता था। तो कम्युनिस्ट के लोगों ने प्लानिंग किया था कि आनंद मार्ग के जो प्रवर्तक हैं, आनंद मार्ग के जो गुरु हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी को जान से मार दिया जाए। लेकिन उन्हें मारने में कम्युनिस्ट लोग असफल रहे, लेकिन उसके चपेट में 5 हमारे सन्यासीगण आ गए, जिससे उनकी बहुत बुरी तरह से हत्या की गई। उनका गला को काट दिया गया, उनके गला को रेत दिया गया और हमारे इससे 5 हमारे जो सन्यासीगण थे वो हमारे बीच में से चले गए, हमेशा के लिए बाबा की गोद में समा गए। तो आज के दिन में लोगों को 12 घंटा का उपवास भी करने के लिए बोला जाता है कि आप लोगों को 12 घंटा उपवास करना है। तो आज दुख का दिन भी है जिसको हम लोग इस उपवास के रूप में करते हैं। लेकिन खुशी का भी दिन है। कारण यह है कि उन दधीचियों को सलाम है, उन दधीचियों को कोटि कोटि नमस्कार है जिन्होंने क्षणिक मात्र भी, लेस मात्र भी उन्होंने थोड़ा सोचा भी नहीं और परमात्मा के लिए बिना कुछ सोचे समझे अपने जान की आहुति दे दी। तो हम सभी को एक गर्व होना चाहिए कि हम परम पुरुष के संतान हैं और उनके लिए अगर हम लोग को जान भी देना पड़े, शरीर भी त्याग करना पड़े तो तत्क्षण उसके पीछे हम लोग को हटना नहीं है। जो भी गलत शक्तियां हैं उनके विरुद्ध हम लोग को हमेशा संघर्ष करते रहना है और हमेशा निगेटिव शक्तियों के विरुद्ध हमेशा संग्राम करते रहना है। हाँ सही बात है, सही बात है दादा। दादाजी पुआ खाए थे?